Hello friends, how are you? We are going to discuss respiration. Respiration is a combined process of physical and biochemical. Physical process means breathing and biochemical process means breaking down of food. That means oxidation of food. That is oxidation of glucose to release energy. So these two process, breathing and oxidation of glucose to release energy, together make the process of respiration. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ब्रीदिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी होता है. ब्रीदिंग मीन्स inhalation and exhalation. Inhalation means intake of oxygen rich air from atmosphere, from medium of organism. Inhalation के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिच एयर अपने एटमॉस्फेयर से, अपने मीडियम से बॉडी के अंदर लेगा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनहेलेशन. और एक्सहेलेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर अपने बॉडी से बाहर निकालता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर make the process of breathing. So this is the first process of respiration. Second, oxidation of food, that is the glucose, to release energy. See, in the process of digestion, we have seen that complex form of food converted into simplest form, soluble form, diffusible form, absorbable form. That means complex form of food converted into its constituent unit, like the complex carbohydrate converted into monosaccharide, glucose, protein converted into amino acid, fat and lipid converted into fatty acid and glycerol. There is no release of energy. Digestion के process में breaking down of food हो रहा है, but there is no release of energy. But in the process of respiration, energy release हो रहा है. क्लियर. और डाइजेशन का प्रोसेस इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल होता है. इन केस ऑफ ह्यूमन, काउस, डियर, एलिफेंट, डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इन द एलिमेंट्री कैनाल. ह्यूमन के केस में डाइजेशन का प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में होता है, सेल से बाहर. ठीक है. तो ऐसे डाइजेशन को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. In case of amoeba, paramecium, digestion takes place inside the cell. So, intracellular digestion. So, digestion may be extracellular and intracellular, both. But the process of respiration take place inside the cell. So, it is intracellular process. And both digestion and respiration are catabolic process. That means complex form of food converted into the simpler one. So that is the catabolic process. Process of respiration takes place in all living organisms, in all living cells, in bacteria, in protista like the amoeba, paramecium, in fungi, in plants like algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm, in all the animals. Because all living organisms require energy to survive their life, to continue all their life process, their vital activity. So the process of respiration occurs in all living organisms. Respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. See, aerobic respiration require oxygen. It occurs in presence of oxygen. रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो 5 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है: ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. सो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहां पे हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, that is a carbohydrate monosaccharide, C6H12O6.
का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जा रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और इसी के साथ क्या निकल रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। In aerobic respiration, from one glucose molecule, 36 ATP energy produce. In anaerobic respiration, there is no requirement of oxygen, in absence of oxygen. Clear? So glucose molecule directly undergo the breaking down to form the ethyl alcohol or ethanol and carbon dioxide and energy in the form of ATP. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी दैट इज एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। सो देयर इज ह्यूज गैप in energy production between aerobic and anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in bacteria and fungi. Anaerobic takes place in higher grade of plants and animals. See, process of respiration always start by the process of glycolysis, and glycolysis is a common pathway, common process of aerobic as well as anaerobic respiration. चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक है, सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस मीन्स कन्वर्जन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरुवेट और 2 पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। Glycolysis not required oxygen, and it takes place in the cytoplasm of the cell, in which one glucose molecule converted into 2 pyruvate or 2 molecule of pyruvic acid. Clear? Along with this, 2 ATP molecule energy also produce. So pyruvate is 3 carbon containing molecule. Now the future of this pyruvate डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो कैसा हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी दैट इज द एनर्जी में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट है, and in case of bacteria and fungi. Ethanol 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स, व्हेन वी डू द हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग लाइक, तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी में कम हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो उस समय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है, एंड दैट पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू lactic acid along with 2 molecule of ATP that is the energy. तो ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट मसल फटीगनेस आता है, क्रैम्पिंग होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट पायरुविक एसिड अंडरगो द कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and 36 ATP energy. So this is the process of respiration. Next, ATP, adenosine triphosphate. It is the energy currency of the cell. ATP को हम energy currency of the cell consider करते हैं, क्योंकि ATP के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी हमारे सभी वाइटल एक्टिविटी को, लाइफ प्रोसेस को कैरी करता है। क्लियर? तो इस तरह से जो एटीपी है वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट,
से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, जिसके रिजल्टेंट क्या बन रहा है, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एटीपी में। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है एडीपी में और एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। क्लियर? फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटीपी 30.5 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्लियर? सो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इट गिव्स एनर्जी टू मूवमेंट एंड लोकोमोशन, फॉर द स्पीकिंग, for protein synthesis, for conduction of nerve impulse, means for all the vital activity. Clear? Next we will see difference between photosynthesis and respiration. See, photosynthesis and respiration are opposite to each other. ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। Photosynthesis occurs in photosynthetic pigment containing organism. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, कैरोटीन प्रेजेंट हो, जेंथोफिल प्रेजेंट हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लियर? और रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सभी सेल्स में होता है, बिकॉज all the cells, all the living organism required energy to survive their life. Next, light dependent process during the daytime. जो photosynthesis है वो light dependent process है, sunlight के presence में होता है, that means during the daytime होता है। Respiration is light independent process, continuous process throughout the life of organism. रेस्पिरेशन लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ये हमेशा होते रहता है और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते रहता है। जब तक लाइफ है तब तक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होते रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्टेंट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है? तो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दैट मीन हियर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस एक इंटरगोनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और रेस्पिरेशन एक कैसा है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज्ड अप होता है। ठीक है? और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट, फूड दैट इज द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। कहां पे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या, ग्लूकोज दैट मीन फूड एज अ मेन प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या होता है कि फूड दैट इज ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे ग्लूकोज दैट मीन फूड एंड ऑक्सीजन यूज्ड अप हो रहा है रेस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक? फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें सिंपलर मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के इंटरेक्शन से कार्बोहाइड्रेट दैट मीन ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है, वाइल द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबोलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट बढ़ जाता है। ठीक है? उसका बायोमास इंक्रीज कर जाता है, दैट मीन उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है? और रेस्पिरेशन प्रोसेस के रिजल्टेंट क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है
जिससे ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज कर जाता है, मतलब बायोमास या वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल में होता है, ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में होता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में होता है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन।